Okay, Ji, Bismillahirrahmanirrahim. So I'm going to start off with another question on Poop and Oppo. It says the following balances have been taken from the accounts of RB, a trader. So we'll have to check whether insurance is an expense or an income. Are you receiving income? Are you receiving insurance? Are you paying for insurance? Because it says insurance paid, then this has to be an expense account. An expense account, beta, has to be entered into the Poop format, right? However, commission receivable is an income that you receive. It has to be in the Oppo account, right? It says the following transactions related to the year, all receipts and payments were through the bank account. So receipts पे लिखोगे तो बैंक लिखना, payments पे लिखोगे तो बैंक लिखोगे, right? So insurance account. So it says prepare the following ledger accounts. Ledger accounts for the T accounts बनाने, balance accounts bring down the balance in the first of April, right? The first account that you prepare is an expense account. So it's an expense account. It is P, O, O, and P. Now, whenever you pay for insurance, तुम्हारा बैंक बैलेंस कम होता है, that cash outflow from the bank account, that has to be on the credit side. बैंक क्रेडिट होगा तो ये एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा. So you will write down the payments on the debit side, right? Payments because बैंक से भी हो सकती है, कैश से भी हो सकती है. इस क्वेश्चन में बैंक से है, so I'm going to write down bank. Let's go to the opening balances. हमें कैसे पता चलेगा ओपनिंग है? डेट देखेंगे, 1st of April है तो ओपनिंग बैलेंसेस है और 31st of March है तो क्लोजिंग बैलेंसेस है, राइट? इंश्योरेंस का मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ. इंश्योरेंस द ओपनिंग बैलेंस इज 2500 प्रीपेड. दैट्स प्रीपेड. P is prepaid. Prepaid brought down. It's 2500. So this means that at the start of the year, you get to know that you made a payment for expense for services to be availed this year, but you made the payment for this last year. पिछले साल आपने प्रीपे किया हुआ था, राइट? तो पिछले साल की इनकम नहीं, पिछले साल का एक्सपेंस था, इस साल का एक्सपेंस है. That has to be on the debit side. That's on the 1st of April 2021. ये हो गया जी. उसके बाद फिर इंश्योरेंस का ये एक बैलेंस है जो एट द एंड ऑफ द ईयर है, वो 850 प्रीपेड है. तो प्रीपेड कैरेड डाउन लिखना पड़ेगा. सो दैट्स प्रीपेड कैरेड डाउन एंड दैट्स $850, राइट? अब ओइंग ब्रॉट डाउन नहीं है सर, लिख दो और डैश डाल दो तब भी ठीक है, ना लिखो बहुत अच्छी बात है. ओइंग कैरेड डाउन नहीं है सर, लिख दो और डैश डाल दो वो भी ठीक है, या नहीं लिखो बहुत ही अच्छी बात है. Let's look into the bank account की summary. So वो कहता है insurance paid is how much? 15,300. So bank balance कम हुआ तो bank credit हुआ, insurance expense debit हुआ $15,300. Now when you were making this payment तो आपने जो है ना थोड़ा सा ओवर पे कर दिया था. तो आप जिसको भी इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देते उन्होंने आपको एक रिफंड इशू किया एंड दैट्स $600, राइट? So refunds will always be an opposite entry to payment. तो आपने पे किया था 15,300, ज्यादा पे कर दिया था. ज्यादा पे कर दिया था तो आप रिफंड को सेटल कर दो. इसको काउंटर करो. इसको काउंटर करोगे तो क्रेडिट साइड पे आएगा. रिफंड जो 15,300 था, 600 उसमें से आपको वापस मिल गए, राइट? दिस वाज द रिफंड. आई गेस दैट्स अबाउट इट फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द इंश्योरेंस अकाउंट. अब इसको बैलेंस करते हैं. जो डिफरेंस आएगा ना बोथ साइड्स पे, दैट हैज टू बी एंटर्ड इनटू द इनकम स्टेटमेंट एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो ये जो बैलेंस आएगा वो इनकम स्टेटमेंट का मिसिंग फिगर है, वो इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, उसमें इंश्योरेंस का ये अमाउंट जाएगा, ये वाला जो इंश्योरेंस इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट आएगा. अब जो मैं रेड से कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं फुटिंग. तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की फुटिंग करते हैं तो देखते हैं कौन सी साइड हैवी. आई थिंक द डेबिट साइड इज हैवी, राइट? 15,300 प्लस 2,500 is 17,800. So you write down 17,800 on both sides. 17,800 में से 600 माइनस करो, फिर 850 माइनस करो. So let me take out my calculator. It says 17,800 minus 850 minus 600. The balance is 16,350 and has to be entered into the income statement as insurance has to be entered into the income statement as 16,350. अब भाईजान अगर आपने 850 प्रीपेड कैरिड आउट किया है तो 850 प्रीपेड ब्रॉट डाउन भी करना होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, बिकॉज दिस ईयर एंड्स ऑन द 31st of March. तो सीडी पे आप 31st of March 2022 लिखोगे एंड द नेक्स्ट डे आफ्टर 31st March 2022 April 1st 2022 द बैलेंस वुड बी 850, राइट? ये तो हो गया पूप का अकाउंट. लेट्स टॉक अबाउट कमीशन रिसीवेबल. इन दिस क्वेश्चन कमीशन रिसीवेबल जो है उसके कुछ बैलेंसेस गिवन है. और बिफोर वी डू एनीथिंग आई वुड वांट यू गाइस, एग्जाम में भी यही करेंगे, सम आप लिख लेंगे ओ पी पी ओ. ओपो लिख लिया. जब कमीशन इनकम है तो इनकम रिसीव करते हो तो कैश इनफ्लो है, बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट होगा, कमीशन रिसीवेबल वुड बी क्रेडिटेड. सो यू विल राइट डाउन रिसीट फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ द कमीशन रिसीवेबल अकाउंट. एंड बिकॉज ऑल रिसीट पेमेंट इन दिस क्वेश्चन वाज टू बैंक अकाउंट, तो बैंक में लिख देना. कैश से भी हो सकती है, कैश लिख देना, डजंट मैटर, पैसे तो आ रहे ना. Now let's look at the balances. मैं green से highlight कर रहा हूँ. Opening 700 owing है. This means at the start of the year you get to know कि तुमने
सर्विसेज लास्ट ईयर डिलीवर कर दी थी $700 की, ओइंग ब्रॉट डाउन $700 की आपने सर्विसेज लास्ट टाइम डिलीवर कर दी थी, अभी तक उसके पैसे नहीं मिले। तो यूजुअली ये पैसे एक साल के अंदर मिल जाते हैं शायद। ये आपका करंट एसेट है जो एक साल के अंदर मिल जाएगा। बट दिस वाज स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो हम इसमें डेट डाल देते हैं April 1st 2021। और अब देखते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस कुछ गिवन है सर। अगेन मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, 630 होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। सो यू गेट टू नो एट द एंड ऑफ द ईयर दैट अ सर्टेन अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर कमीशन, राइट। $630 आपको कमीशन अभी रिसीव करने बाकी है, आपके लिए रिसीवेबल है, अभी तक आपको नहीं मिला है, राइट। ना ओपनिंग बैलेंस में प्रीपेड ब्रॉट डाउन नहीं था, लिख दोगे और डैश डाल दोगे, वो भी ठीक। ना लिखो, बहुत अच्छी बात। प्रीपेड कैरी डाउन में भी कोई बैलेंस गिवन नहीं था, लिख दोगे और डैश डाल दोगे, ठीक है। ना लिखो, बहुत अच्छी बात। ना इसको चेक करते हैं, इसका कोई कमीशन का कोई रिफंड तो नहीं हुआ। नो सर, आई डोंट थिंक सो। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी, हमने सारी चीजें यूज कर ली है, राइट। नाउ इट सेज अब इसको बैलेंस करना है सर। तो अब ये जो है ना, ये तुम्हारी मेजर इनकम नहीं होती, ये अदर इनकम्स होती। कमीशन रिसीव करना तुम्हारा ट्रेडिंग नेचर नहीं है। अगर तुम कुछ सेल करो, उस पर कमीशन रिसीव करो, दैट्स गोइंग टू बी अदर इनकम, जो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आते हैं इनकम स्टेटमेंट में। द डिफरेंस हैज टू बी एंटर्ड ऑन द लाइटर साइड। जो मैं रेड से लिखूंगा ना, उसको हम कहते हैं फुटिंग। रिसीट, सॉरी मैं रिसीट पोस्ट कर दूं, होल्ड ऑन। रिसीट्स है हमारे पास 7,200, सो रिसीट 7,200 पोस्ट कर। नाउ जो डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स है ना, दैट हैज टू बी एंटर्ड इनटू द इनकम स्टेटमेंट। लाइटर साइड पे इनकम स्टेटमेंट पे एंटर हो जाएगा। द क्रेडिट साइड इज हेवी एट 7830 ऑन बोथ साइड। 7830 minus 700 is going to give you 7130. This has to be entered एट द एंड ऑफ द ईयर, March 31st 2022 पे ये इनकम एंटर हो जाएगी एडेड टू ग्रॉस प्रॉफिट। देखो जी, अगर ओइंग कैरी डाउन है तो April 1st 2022 पे ये आपको ओइंग ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा। दिस इज ब्रिंगिंग डाउन द बैलेंसेस ऑन द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, राइट। तो 630 दिस बिकॉज इट्स अ कमीशन आउटस्टैंडिंग, मतलब सर्विसेज आपने डिलीवर कर दी है, वो जिसको भी कमीशन, जिससे कमीशन लेना है उससे अभी रिसीवेबल है, अभी तक नहीं मिला है, आपके पैसे किसी और के पास पड़े हैं, योर मनी लाइंग विद समबडी एल्स, हेंस दिस इज अ करंट एसेट। इसी तरह अगर प्रीपेड ब्रॉट डाउन की बात करो तो ये एक्सपेंस का प्रीपेमेंट था। तो एक्सपेंस का प्रीपेमेंट और इनकम का अक्रूवल या इनकम का ओइंग, दोनों तुम्हारे करंट एसेट होते हैं। तुमने पहले से 850 पे किया हुआ है, सर्विसेज तुम अगले साल अवेल करोगे। तुमने 630 की सर्विसेज पहले डिलीवर कर दी है, अब पैसे आना बाकी है। हेंस दिस इज अ करंट एसेट। आई होप दिस क्लियर इज अप योर concept. Thank you so much. I'll see you then. Goodbye.